A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class level accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed almost all types of the adjustment which are given in the very important chapter, that is a preparation of the final statement of sole proprietorship with adjustment. Basically, you know very well, when we are talking about the preparation of the financial statement, so the financial statement is a statement which are prepared at the end of the financial year by the sole proprietorship. In it, there are basically three types of statement are included in it. If we are talking about the financial statement, so financial statement में basically you know very well दो तरह के स्टेटमेंट इंक्लूड किए जाते हैं, that is an income statement and positional statement. What is income statement? Income statement is a statement which show the ability of earning a profit by the firm, by the sole proprietorship. So income statement से basically हमें ये पता चलता है कि एक organization, एक sole proprietor कितनी इनकम कमा रहा है, which can be classified into the two categories, that is a gross profit and net profit. अगर हम बात करें पोजिशनल स्टेटमेंट की, सो पोजिशनल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द पोजीशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर. यानी एक सोल प्रोप्राइटर एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एक साल के एंड में कितना एसेट्स है उसकी, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी कैपिटल है, ये सब पता करने के लिए हम लोग पोजिशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट. यानी आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग का पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट विथ वेरियस टाइप्स ऑफ द एडजस्टमेंट. सो विदाउट क्रिएटिंग एनी डिले, लेट्स वी मूव टू द टुडेज क्वेश्चन. एंड द टुडेज क्वेश्चन व्हिच आर रिलेटेड टू द preparation of trading account, profit loss and the balance sheet are as follows. So please listen very carefully this question. The question is, from the following trial balance of Messrs Arjun and Sons as at 31st December 2013, prepare trading and profit and loss and balance sheet. यानी तीन चीजें आपको प्रिपेयर करनी है. The first one, we have to prepare the trading account. सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, that is in trading and profit and loss account of which company? Of Messrs Arjun and Sons. यानी हम अर्जुन एंड सन्स की क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. एंड एट विच डेट, दैट इज 31st December 2013. यानी इट इज एन कैलेंडर ईयर फॉर द ईयर ended 31st December 2013. Okay, and the question are as follows, as you know very well. And according to the question, you know very well, there are few adjustment are also given in the question. कुछ adjustment भी given है, and वो कौन कौन से adjustment है उस पर भी हम लोग थोड़ा focus कर लेते हैं. And these the adjustment are, adjustment number 1, that is in closing stock rupees 64,000, wages outstanding rupees 2,400, bad debt 600 and provision for doubtful debts to be 5% on debtor. Rent is paid for 11 month. Loan from bank was taken on 1st July 2013. आपने बैंक से लोन लिया है 1 जुलाई 2013 को. And provide depreciation on machinery at the rate of 10% per annum and provide manager's commission at 10% of the net profit after charging such commission. So you know very well, सबसे पहले हम लोग क्या नोट डाउन करते हैं इन द ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, that is an opening stock. And according to the question, this is in format particulars amount. First of all, we write down the two opening stock. So what is the value of opening stock? The amount of the value of the opening stock is 42,000. Thereafter we write down the two purchase, and the value of the purchase is 82,600 minus
you know very well, we write down the return outward. Return outward is a purchase return. So return outward is a purchase return. So हम इसको return करेंगे 1600 rupees and it will be deducted from it. So the net value is 81,000 of the purchase. The total purchase is 82,600, जिसमें से हमने 1600 रुपए का purchase return कर दिया. So our net purchase is 81,000. On the credit side, first of all we write down the sales. So sales value according to the quotient is 1,55,000. सेल्स की वैल्यू कितनी है 1,55,000 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर इज अ नो सेल्स रिटर्न, कोई भी सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, यानी क्वेश्चन में कोई भी सेल्स गिवन नहीं है, इसलिए हमने सेल्स में से कोई भी वैल्यू डिडक्ट नहीं की. एंड यू नो वेरी वेल, हम और क्या नोट डाउन करते हैं इसमें, दैट इज एन क्लोजिंग स्टॉक. सो द क्लोजिंग स्टॉक विल बी अ according to the quotient and according to the adjustment, that is 64,000. okay ठीक. So the next adjustment is wages outstanding. So let's we take the few direct expenses which are included in it. So the first direct expenses, as you can see that, which are shown in the trial balance, that is a return outward. Return outward is the purchase return, so it will be deducted from the purchase. The second one is the wages and carriage inward. अगर सिर्फ कैरेज लिखा होता तो भी हम इसको डायरेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और कैरेज इनवर्ड लिखा है तो ये डायरेक्ट है 1200. वेजेस इज 4000, बट वेजेस के साथ एक एडजस्टमेंट इज गिवन विच आर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, दैट इज वेजेस आउटस्टैंडिंग इज 2400. सो हम इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400. सो आवर वेजेस इज 6400. Now next one is a power. Power is also considered as a direct expense. So the value of the power is 6,000. Value of the power is 6,000. Machinery, furniture, rent, salary, insurance, 8% bank loan, debtor, creditor, cash in hand, bank overdraft, input CGST, SGST, output CGST, output SGST is not a part of the. It is not a part of the trading account. So हमारा trading account complete हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, वी टोटल, हम इसको टोटल करेंगे. टोटल कैसे करेंगे, फर्स्टली वी टोटल इन द क्रेडिट साइड 0,00549 6 and 5 1 2,19,000 एंड देयर आफ्टर 2,19,000 में से इतनी सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. एंड द वैल्यूज आर 42,000 81,000 1200 6,400 and 6,000. सबको ऐड करते हैं. 6 2 3 4 4 6 10 16 1 8 4 12 and 13. So 1,36,600 is the total of debit side, whereas the credit side का total आया 2,19,000. So इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, that is in 2 gross profit. And this gross profit will be shown as a 2 gross profit CD carried out. So कितना आया, काउंट कर लेते हैं. 2,19,000 minus 1,36,600 and this will be a 2 and 8 82,400 is a gross profit. So I hope gross profit clear हो गया होगा. कैसे हमने निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार चीजें तो पेयर में है, ये आपको भूलनी नहीं है. ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त ये चार चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए. ओपनिंग स्टॉक, परचेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक. इसमें कोई ऑर्डर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. ऐसा नहीं कि पहले परचेस लिखते हैं फिर ओपनिंग स्टॉक लिखें, या पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखें फिर सेल्स लिखें. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा. डेबिट साइड के लिए 2 आइटम्स के लिए और क्रेडिट के लिए भी 2 आइटम्स के लिए. एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आपको फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना पड़ेगा विद एडजस्टमेंट. कैरेज इनवर्ड में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वेजेस में एडजस्टमेंट था, दैट इज द वेजेस आउटस्टैंडिंग इज ₹2,400. तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. पावर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज लिख दिया. और कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है या कोई ऐसा आइटम एडजस्टेड गिवन नहीं है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर करते हैं. कैलकुलेशन मिस्टेक में मुझे नहीं लगती कहीं कुछ होगा, मैं मिला लेता हूँ.
यस, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, सो द करेक्ट आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट इज 82,400. सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. And after that we are moving to the preparation of PL account, because you know very well, after the preparation of trading account, thereafter we are moving to the preparation of PL account. Due to the insufficiency of the space, you know very well, so यहीं से हम लोग PL account बनाना स्टार्ट कर देते हैं. But you know very well, ये gross profit transfer होता है in the credit side of the trading account. ट्रेडिंग अकाउंट के PL अकाउंट के साइड में ट्रांसफर होता है इन द क्रेडिट साइड. सो वहीं से हम आपको शो कराते हैं कैसे करना होता है. पहले हम लोग फर्स्ट वी राइट डाउन दी ग्रॉस प्रॉफिट 82,400 एंड देयर आफ्टर वी आर रिटन ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द डेबिट साइड एंड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द PL अकाउंट. ओके, सो चलते हैं हम लोग PL अकाउंट पे, इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको याद रहे. 82,400 2,400 is a gross profit. So by gross profit 82,400. Okay. अब चलते हैं सारे indirect expenses. So one by one we take the indirect expenses. The first indirect expense which are given in this question is rent. But rent पे भी adjustment है. Rent is 22,000. So to rent 22,000, and according to the adjustment you can see that rent is paid for 11 month. Rent हमने कितने महीने के लिए दिया? Only for 11 month. तो you know very well 1 month का क्या हो जाएगा? Outstanding rent 22,000 paid for 11 month. एक साल में 12 महीने होते हैं, so 1 month का जो rent है it is still outstanding. So this is the 2,000 added than outstanding. मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. अगर है तो फिर थोड़ा सा एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ. According to the question, it is clearly observed that the rent is paid for 11 month. अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैंने रेंट दिया 11 मंथ का, so it means साल में 12 महीने होते हैं और आपने 11 महीने का रेंट दिया. इट मीन्स एक महीने का रेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एनी रेंट, एनी एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड. यानी रेंट ड्यू तो है लेकिन आपने पे नहीं किया, सो आउटस्टैंडिंग की तरह हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. सो वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग इज 2,000. हाउ? 22,000 इज पेड फॉर 11 मंथ. सो 1 मंथ का रेंट कितना होगा? 2,000. सो 2,000 हम ऐड कर देंगे रेंट में. सो द टोटल रेंट इज 24,000. Next is a salary. Salary से related कोई adjustment is not given in the question. So salary को as it is copy कर लेंगे and the value of the salary is 15,000. Insurance को लेकर भी कोई adjustment नहीं है. Basically जब हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे जिसमें एडजस्टमेंट का कोई रोल नहीं होता था, तो वहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को PL अकाउंट में डेबिट किया. बट जब कोई भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी गिवन है तो आप हर एक आइटम को PL अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस करने से पहले यू कैन चेक इट. यू हैव टू चेक इट कि उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है कि नहीं गिवन. इसलिए मैं कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ लिख रहा हूँ. सो बिफोर दैट आई विल चेक कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है. सो 1 2 3 4 5 6 देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस एज इट इज वैसे ही कॉपी कर लेना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट इज 8% बैंक लोन. यू नो वेरी वेल बैंक लोन का जो 8% इज अ लोन एंड लोन इज अ लाइबिलिटी. बट उसके आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है 8%. इट मीन्स आपको बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना. क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन गिवन है? अगर मैं पूरा क्वेश्चन उठा के देखूं, सो एडजस्टमेंट इज गिवन लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2013. तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, पहले तो कुछ आपने पे नहीं किया. अगर पे किया होता तो इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. पहले तो मैंने कुछ पे नहीं किया, सो हमें
फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड आउटस्टैंडिंग रेट ऑन बैंक लोन। दो जगह इफेक्ट पड़ता है, एक पीएल के डेबिट में, नंबर सेकेंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी। सो बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है कितना होगा, लोन कितना लिया हमने 25,000 रुपीज का, कितना परसेंट है 8%। कब लिया लोन 1 जुलाई, सो काउंट कर लो 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिकॉज हम ये पीएल अकाउंट कब बना रहे हैं 31 दिसंबर। सो 6 मंथ का हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी पे करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट हम पे करते तो जितना बैलेंस आता विच आर नोन एज एन आउटस्टैंडिंग। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, अगर इसी सेम क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस सपोज 1000 और उसको कैलकुलेट करने पे आता है 2000, सो 1000 अभी भी आउटस्टैंडिंग लाइक अ रेंट, बट यहाँ हमने तो कुछ दिया ही नहीं, 1 रुपए भी इंटरेस्ट नहीं दिया बैंक लोन पे। So all the interest will be taken as an outstanding interest on bank loan, that is at 25,000 at the rate of 8% at for the 6 month। कैसे 1 जुलाई को लिया तो काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सब 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट डेटर क्रेडिटर, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट अब आप एडजस्टमेंट में मैच करो, क्लोजिंग स्टॉक एंटर कर लिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग एंटर कर लिया, बैड डेब्ट 600 ये एंटर नहीं किया था तो उसको एंटर करना पड़ेगा। टू बैड डेब्ट्स कितना है 600 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी 5% ऑन डेटर, आपको प्रोविजन बनाना है। सो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज 5% ऑन डेटर। डेटर कितने थे आपके, यू हैव टू चेक इट, that is 20,600, इसमें से बैड डेब्ट्स कितना हो गया 20,000। सो प्रोविजन कितने का बनेगा 20,000 का 5%, that is in 1,000। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोवाइड, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, लोन हो गया। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर annum। टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिशिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर annum। 10% पर annum तो मशीनरी कितने की थी, यू हैव टू फाइंड इट, दैट इज 50,000 की मशीनरी, उस पर 10% से आपको डेप्रिशिएशन लगाना है, सो द डेप्रिशिएशन इज 5,000। और कोई इनकम है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कोई एबनॉर्मल इनकम, देयर इज नो एबनॉर्मल इनकम। ओके, सो दिस इज अ इसमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं 624,000 दैट इज एन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज 1,000। सो आपने क्या किया, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट एंड बिफोर प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि उस आइटम से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। जैसे मैंने रेंट लिखा तो एडजस्टमेंट था, उसको कंसीडर किया, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इंश्योरेंस पे नहीं था, एज इट इज उतार दिया। बैंक लोन इंटरेस्ट देखा, बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना था, पूरा देना था क्योंकि 6 महीने के लिए हमने लोन ही लिया अभी करंट ईयर में, तो 1,000 रेंट पे इंटरेस्ट दिया, लोन पे इंटरेस्ट दिया। बैड डेब्ट्स इज 600 अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट, प्रोविजन हैव टू कैलकुलेटेड ऑन द डेटर at the rate of 5%, and last one is the depreciation on machinery. Depreciation on machinery is 5,000. Okay, so the depreciation कितना आपने लगाया 5,000। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे डेबिट साइड का 24,000, 15,000, that is 39,000। उसके बाद यहाँ ऐड करो 3,646, 5,262, 6,200 and 5,000। सो डेबिट का पूरा टोटल करने पे वी फाइंड दैट 50,200, वेयर इज द क्रेडिट का टोटल इज 82,400। सो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी टेकन एज द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटल कर लो, इधर आया 82,400, इधर भी आना चाहिए 82,400, डिफरेंस इज 82,400 is an income, whereas the 50,200 is an expense. So 32,200 is the net profit.
So according to this question, the net profit as per the question is 32,200. So please note down in your copy properly. So हमने क्या बनाया? First of all, we have to prepare the gross profit. Gross profit calculate किया trading account की help से, and thereafter हमने क्या prepare किया? Profit and loss. This is a profit and loss account. And profit and loss account से हमें क्या find out हुआ? We find the net profit, that is 32,200. तो 32,200 को हम क्या करेंगे? It will be transferred to the capital account. It means ये capital में जाकर add हो जाएगा. Okay, so let's we move to the balance sheet. Before the preparation of the balance sheet, ये बात ध्यान रखना, बैलेंस शीट बनाने से पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट को प्रॉपरली अपने सामने रखना एंड क्वेश्चन को प्रॉपरली अपने पास रखना, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन एंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन एडजस्टमेंट यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में क्वेश्चन में रिमेनिंग आइटम्स जाते हैं जो ट्रेडिंग और पीएल में जा चुके हैं, जो बचा है वो जाएगा बैलेंस शीट में, एंड एडजस्टमेंट के आइटम्स जाएंगे, बाकी कोई आइटम्स कंसीडर नहीं होंगे. ओके, सो लेट वी स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट. उसमें आप पहले देख लो, मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ. जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग रेंट. सो ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में. इन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इट इज ऑल्सो शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बैड डेब्ट्स क्या होगा? डेटर में से माइनस होगा. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेटर में से माइनस होगा. डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी, it will be deducted from the machinery in the asset side of the balance sheet. And net profit transfer to the capital account, ये क्या होगा? कैपिटल में ऐड होगा. और जो सैलरी इंश्योरेंस है, इन सब से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है. ओके, सो चलते बनाते हैं हम लोग क्या? बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा. आंसर आया नेट प्रॉफिट का 32,200. याद रखना, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते वक्त जरूरत पड़ती है. सो बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2030, एंड बिकॉज दिस क्वेश्चन फॉलोज द कैलेंडर ईयर. सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द कैपिटल, क्योंकि जो चीजें सबसे टॉप में दी उसी को स्टार्ट करते हैं. कैपिटल इज 80,000 प्लस नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, दैट इज 32,200 एंड माइनस ड्रॉइंग. ड्रॉइंग कितना है? वैल्यू गिवन है, दैट इज एन 18,000. सो कैपिटल इज 80,000 प्लस नेट प्रॉफिट 32,200 एंड ड्रॉइंग इज 18,000. So closing, this will be known as the closing capital. Okay, so this is the closing capital, 80,000 minus 18,000 plus 32,200. Next one is according to the quotient, purchase and sales consider नहीं करते. stock, return outward, carriage inward, wages, power, machinery. हाँ, machinery आती है इस साइड में. So machinery is 50,000, और याद होगा मशीनरी पे हमने क्या लगाया था? डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, that is in 5,000. So closing value of the machine is 45,000. Next is the furniture, 14,000. फर्नीचर की वैल्यू है 14,000. Next, rent, salary, insurance, 8% bank loan is a liability. So 8% bank loan is a liability, that is in 25,000, and you know very well इस पे आपको इंटरेस्ट देना था. So outstanding interest on bank loan कितना बना था? 25,000 into 8% into 6/12. So that's why एक बार फिर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. 25,000, 8%, 6/12, 6 2s 12, 2 4s that is in 1,000. So अभी मैंने कैलकुलेट किया था, फिर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. That is the outstanding interest on bank loan is 1,000. Next is a debtor. Debtor is 20,600, but you know very well इसमें भी एडजस्टमेंट था. इसमें से पहले माइनस होगा बैड डेब्ट्स 600,
देयर आफ्टर माइनस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज 1000, सो क्लोजिंग डेटर विल बी 19,000। देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। क्रेडिटर इज 18,900, इसको लाइबिलिटी में शो करते हैं। कैश इन हैंड इज अ पार्ट ऑफ द एसेट्स, सो कैश इन हैंड इज 1500, okay, and bank overdraft is a liability. Bank overdraft is a liability and the amount of the bank overdraft is 10,000. Next, according to the question is input C GST, input S GST is 15,000 each, whereas output C GST and output S GST is 10,000 each. इसका मतलब ये है कि आपका इनपुट यानी कि जीएसटी पेड इज ग्रेटर देन द जीएसटी कलेक्टेड एंड इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो इनपुट सी जीएसटी विल बी 15,000 और उसमें से माइनस करेंगे आउटपुट सी जीएसटी विल बी 10,000, सो 5,000 विल बी शोन इन द एसेट साइड एज एन इनपुट सी जीएसटी। नेक्स्ट वन इज अ इनपुट input SGST is 15,000 minus output SGST also 10,000, and so now the net amount shown in the asset side of the balance sheet, that is an input SGST is 5,000 because input की वैल्यू ग्रेटर थी as compared to the output. So अगर output की वैल्यू ज़्यादा होती है तो liability में शो करते हैं और input की वैल्यू ज़्यादा होती है तो asset side में शो करते हैं। So ये बैलेंस शीट ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के जितने आइटम्स है मैंने इसमें शो कर दिया। लेट्स वी मूव टू द वैल्यूज और आइटम्स विच आर गिवन एज एन एडजस्टमेंट, दैट इज इन क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक इज 64,000 से एसेट साइड में शो कर दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400 लायबिलिटी में शो कर दिया। बैड डेब्ट्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया है। रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट था 1 मंथ का, दैट इज 2,000, उसे भी लायबिलिटी में शो करेंगे। लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई, उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने डेबिट कर लिया है। डेप्रिशिएशन लगाना था 10%, उसको माइनस कर लिया है। सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू एडिट द लायबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड यू नो वेरी वेल कि जो बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड होता है और बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है, दोनों का टोटल क्या आता है, ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा बराबर आता है। ये लायबिलिटी साइड है एंड दिस विल बी द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और दोनों ही साइड क्या आती है, इक्वल आती है। सो लेट्स वी फाइंड आउट कि इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। 80,000, 32,200 एंड 18,000, इसमें से 18,000 माइनस करना है। सो वी हैव 62,000 minus 32,200, that is 000 and 953 to 29,000. Is that clear? 29,000 is in closing capital. Am I correct? Wrong. Because 32,200 add करना है, deduct नहीं करना है। 94,400. So 94,400 में ये सारे लाइबिलिटीज के आइटम्स को ऐड करो और इसी तरह से एसेट्स में सारे एसेट्स के आइटम्स को ऐड करो। सो वी फाइंड द करेक्ट आंसर कि लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू द एसेट्स, बिकॉज अगर आपने सारे एडजस्टमेंट सही किए होंगे सो आपका आंसर करेक्ट आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं आने वाला है। सो हियर इट इज अ लिटिल बिट कैलकुलेशन मिस्टेक, दैट इज इन capital is 80,000 and net profit is 32,200 and drawing is 18,000. So now closing capital is 94,200, not is 94,400. So उसको करेक्ट कर लेना। और जब हम लाइबिलिटी साइड टोटल करेंगे सो द टोटल इज लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज 1,53,500, और उसी तरह से जब हम एसेट साइड को टोटल करेंगे सो वी गॉट अ करेक्ट आंसर दैट इज 1,53,500. So you can see that in the balance sheet when we prepare the balance sheet of any sole proprietor, बहुत ही ध्यान से समझना ट्रिक को, जो आइटम्स बच गए हों ट्रेडिंग और पीएल्स के बाद,
ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाने के बाद जितने अकाउंट बन जाए उसको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज एंड एसेट्स में क्लासीफाई कर लेना। उसके बाद यू विल मूव टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में। वेजेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेटर में से माइनस होते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग है सो लाइबिलिटी। लोन पे इंटरेस्ट पे लोन है सो लाइबिलिटी। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसेट्स पे सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट्स। Okay, so please note down. So you can see that in today's class we are talking about the very important chapter, and approximately we have covered all the topics of this chapter. Firstly, we are talking about the preparation of the financial statement in theoretical way. कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं और कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होते हैं, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोगों ने थ्योरेटिकल वाइज स्टडी किया। एंड देयर आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस एडजस्टमेंट लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल, अमाउंट विड्रॉन एज अ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एंड इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं, यू नो वेरी वेल। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, goods and service tax, goods on service tax on adjustment item, depreciation, a lots of adjustment we are talking in the last we discussed in the last few videos. So today on 30 October officially we are completing this chapter, and after that we are moving to the next chapter, and approximately this is the second last chapter of our syllabus, that is the incomplete record. So I hope today we cleared all the questions and all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.